Hello, children. Today we will learn the second part of the sound of music of our Behave book. And in this second part, we will learn, we will study about the music maestro Ustad Bismillah Khan. And the name of the lesson is the Shehnai of Bismillah Khan. Dear friends, the name of our lesson is The Sound of Music, and we have studied about Evelyn Glennie. And though being deaf, though she d- does not possess, does not have the ability to hear, but with sheer determination and hard work, she decided to make music her life, which was quite impossible task for many more, you see. But she did it with great efforts, and now she is an inspiration to all of us. Now we have one more Indian heritage singer, and the name of this Shehnai player, music maestro, is Ustad Bharat Ratna, Ustad Bismillah Khan. So he is also called as the Shane Shehnai. Shane Shehnai. Shehnai, dear friends, is an instrument which is considered as auspicious, जिसको शुभ माना जाता है. क्यों शुभ माना जाता है? क्योंकि ये मंदिरों में, ये मस्जिदों में, ये मंदिरों में, ये शादियों में इसकी गूंज आपको सुनाई देगी. आज भी जब भी शादी कहीं होती है तो लड़कियों से पूछा जाता है कि शहनाई कब बजेगी. तो एक सिंबॉलिकल सेंटेंस है, सिंबॉलिकल है. शहनाई कब बजेगी मतलब शादी कब होगी. तो इतनी ये जो है इनडिस्पेंसिबल कंपोनेंट है सारे इंडियन जो शुभ फेस्टिवल्स होते हैं, त्यौहार होते हैं, उसमें जो है शहनाई का अनन्य साधारण महत्व है. और जब भी आप शहनाई का नाम सुनते हैं तो तुरंत दूसरा नाम हमारे ज़बान पर आता है, वो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और शहनाई ये भी जो है बिल्कुल इंटरमिंगल्ड है, इंडिस्पेंसिबल पार्ट है. तो जिनके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं. So do you know these people? What instruments do they play? So here is the portrait of some of the music maestros of India. You can recognize them one or the other. Ustad Zakir Hussain, Pandit Hari Prasad Chaurasia, and the last one here is Ustad Bismillah Khan. Think of the Shehnai, and the first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. The next would probably be Ustad Bismillah Khan, the Shehnai maestro playing this instrument. जब भी कभी आप किसी भी शुभ जो है फेस्टिवल की बात करेंगे या शादी की बात करेंगे या टेम्पल्स की बात करेंगे तो आपको शहनाई की याद आएगी. और शहनाई की जैसी याद आती है तो दूसरी याद उसके साथ जुड़ी हुई याद आती है, वो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की. बिहाइव का ये अपना बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर. सो दिस इज द शहनाई. ओके, नाउ द लेसन इज अबाउट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. ही वॉज ए रिनाउंड शहनाई प्लेयर इन इंडिया. ही इज ए लीजेंड बिकॉज he did something which has historical significance. He played the Shehnai on the day India got independence, that is 15th August 1947, at the Red Fort before the Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru,
gave his speech, his famous speech, Tryst with Destiny. Now, before that, Bismillah Khan played the Shehnai in order to signify something auspicious for the whole country was about to happen. India was about to get freedom, and so on that occasion, Bismillah Khan played the Shehnai, and so we can say that he is a legend. Not by the means of this particular incident only, but the credit for bringing the Shehnai to the classical stage, or to the films, or to the you can say that people would start getting bread and butter through the playing of Shehnai. All the credit of this is undoubtedly, you see, goes to Ustad Bismillah Khan. Now, we will start the lesson. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence. देखिए क्या बोल रहे हैं. पुंगी का नाम आपने सुना होगा, एक जेनरिक नेम है. एक रीडेड नॉइस मेकर होता है, लेकिन उसमें होल नहीं होते. आप देखिए, उसको बोलते हैं पुंगी. ये देखिए, ये पुंगी है और ये शहनाई है. तो बुक का ही जो है टेक्स्ट बुक में से ही ये चित्र लिया गया है. ओके, ये पुंगी है और बाद में शहनाई है. तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी. इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी हाउ ए पुंगी had been converted into a shehnai. Very interesting story. And the name Shehnai itself has got a great significance. You will see how it has happened. Emperor Aurangzeb, Badshah Aurangzeb ने banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence. Royal residence का मतलब होता है राजघराना. तो राजघराने में, राजा के दरबार में पूंगी जो है, समझ रहे, पूंगी को बजाने से उन्होंने बैन कर दिया. इसके बाद यहाँ पूंगी नहीं बजेगी. क्यों? फॉर मीन्स बिकॉज. फॉर का मतलब होता है बिकॉज इट हैड श्रील अनप्लेजेंट साउंड. क्यों उसको बैन किया गया? ध्यान में रखना है, क्वेश्चन में आता है कई बार. वाई डिड औरंगजेब बैन द pungi in the royal residence? Because it had shrill unpleasant sound. क्योंकि इसका साउंड कैसे था? श्रील और अनप्लेजेंट. श्रील मीन्स कर्कश, अनप्लेजेंट यानी अनमेलोडियस. यू सी, अच्छा आवाज नहीं था, इसलिए औरंगजेब को बिल्कुल पसंद नहीं आया, उन्होंने बैन कर दिया. पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर्स. तो पुंगी क्या है? पुंगी एक जेनरिक नेम है. जेनरिक नेम का मतलब होता है इज ए नेम गिवन टू ए क्लास और ए ग्रुप एज ए होल. तो रीडेड जो नॉइस मेकर्स होते हैं, मतलब बांस के बने हुए जो वाद्य होते हैं जिससे आवाज निकलता है, उन सबको क्या बोला जाता है? पुंगी. एंड फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड. और बहुत कम लोगों ने सोचा था कि ये पुंगी जो है, ये बैन होने के बाद फिर से कभी रिवाइव भी होगी. रिवाइव का मतलब होता है पुनरुज्जीवित होना, रिवाइव्ड, फिर से एक बार जीवंत होना. बैन हो गई थी ना. पुंगी बिकेम ए जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर्स. फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड. तो क्या स्टोरी इसके पीछे? अ बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस. देखो, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का अभी जिक्र नहीं आया है. हाँ, वो तीसरे चौथे पार्ट में आता है, इसी में. अ बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस. एक बार्बर था. बार्बर समझते ना, जो बाल काटने का कार्य करते हैं, तो वो बार्बर लोग होते हैं ना. अ बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस. एक बार्बर थे और वो जो है रॉयल पैलेस में उनका जाना आना था. लेकिन वो किस घराने से बिलोंग करते थे? वो बार्बर जरूर थे, लेकिन किस घराने से बिलोंग करते थे? वो म्यूजिशियन के घरानों से.
who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. उसने एक दिन डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, वो इसकी टोनल क्वालिटी को सुधारेंगे. समझते ना टोनल क्वालिटी, टोन टोन समझते ना, धुन, उसकी धुन की क्वालिटी को सुधारेंगे, क्योंकि इसको श्रील कर्कश आवाज आता था इसलिए बैन कर दिया था. ही चोज ए पाइप, चूज का पास्ट टेंस. उन्होंने क्या किया, एक पाइप लिया विथ ए नेचुरल हॉलो स्टेम, जैसा बांस का होता है ना, उसके अंदर खाली, हॉलो स्टेम का मतलब, हॉलो मतलब खाली. दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी. तो पुंगी थोड़ा सा छोटे बांस की बनती थी और ये लंबा लिया थोड़ा सा उन्होंने पाइप, which was larger and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe. और उसके ऊपर क्या कर दिया उन्होंने, 7 होल्स बना लिए. कितने होल्स बना लिए, 7 होल्स. समझते हैं ना, सप्त सूर, 7 सूर, 7 होल्स. When he played on it, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दिस होल्स, तो उन्होंने बाद में जो है वो प्ले करना चालू किया, बजाना चालू किया उसको. व्हेन ही प्लेड ऑन इट, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दिस होल्स, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वेयर प्रोड्यूस्ड. तो बड़ी अच्छी बात हो गई, बेहद खूबसूरत बात यहाँ ये हो गई कि पुंगी को जिसको बैन कर दिया गया था उसको रिवाइव करने का फैसला किया एक बार्बर ने, जो म्यूजिकल जो खानदान को बिलोंग करते थे. और उन्होंने एक हॉलो स्टेम लिया, एक खाली जैसा बांस होता है ना, उसके अंदर खाली हॉलो स्टेम होता है, तो वो लिया, उसके ऊपर 7 होल बनाए, और जब उसको बजाने लगे वो सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वेयर प्रोड्यूस, बड़े कर्ण मधुर आवाज उससे निकली. ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर द रॉयल्टी, तो उन्होंने ये इंस्ट्रूमेंट परमिशन ली और रॉयल्टी मतलब राजा के दरबार में इसको उन्होंने प्ले किया. समझ रहे, अब औरंगजेब का शासन तो खत्म हो गया था, किसी शाह के दरबार में, समझना. एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और इतनी सुंदर शहनाई बजी, क्योंकि उसमें उसकी टोनल क्वालिटी अब क्या हो गई थी, इंप्रूव हो गई थी. एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस, हर कोई इम्प्रेस हो गया. द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम. तो ये इंस्ट्रूमेंट जो पुंगी से एकदम हटकर था, एकदम डिफरेंट था, अब इसको नया नाम दिया जाना था, उसका नामकरण होना था. ओके, फिर एज द स्टोरी गोज, तो इसी तरीके से स्टोरी चलती है. सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाहस चैम्बर, शाह ने राजा, ठीक है, तो इसी तरीके से स्टोरी आगे बढ़ती है. और बोला जाता है कि क्योंकि ये पहली बार यह इंस्ट्रूमेंट शाह के दरबार में बजाया गया था, एंड वॉज प्लेड बाय ए नाइन, और ये किसने बजाया था, एक नाई ने उसको प्ले किया था, इसलिए ये शाह और ये नाई मिलकर ये शब्द बना शहनाई. कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. इट इज ऑसम, यू सी. सो since it was first played in the Shah's chamber and was played by a nai, that is a barber, नाई बोलते हैं ना बार्बर को, the instrument was named the शहनाई. तो इस तरीके से शहनाई इसका नाम पड़ा. आई होप आपको भी ये स्टोरी बड़ी पसंद आई होगी. इसी तरीके की ये स्टोरी है. देखिए, पुंगी थी, फिर रिवाइव होके ये क्या बनी, है ना, 7 होल्स इसके अंदर बने, और बाद में इसकी टोनल क्वालिटी सुधर गई. फिर क्या हुआ, ये देखिए वर्ड की मीनिंग है, श्रील, अनप्लेजेंट, जेनरिक नेम, सारे वर्ड की मीनिंग लिख लेना है आपको. ओके फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम थोड़ा कम होता है अपने पास. ओके, दीज आर सेवरल काइंड्स ऑफ शहनाई. यू सी, पुंगी नहीं है अभी, क्या है ये, शहनाई बन गई है. ओके ओके. Now the sound of the Shahnai began to be considered auspicious. Auspicious मित्रों, auspicious का मतलब शुभ. auspicious यानी शुभ होता है, शुभ. शुभ समझते हैं ना, auspicious. auspicious यानी शुभ है. देखिए, शुभ शकुन
माना जाता है इसको। ओके, now the sound of the Shehnai began to be considered auspicious, and for this reason it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding। और आज भी शहनाई जो है एक indispensable component है। indispensable का मतलब होता है that cannot, without which a piece of work cannot be done, जिसको अलग नहीं किया जा सकता, एक महत्वपूर्ण घटक, एक अविभाज्य घटक है। किसका? एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग का। टेम्पल्स में भी इसको बजाई जाती है और इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। कोई भी नॉर्थ इंडिया समझते हैं ना, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये जो बहुत बड़ा एरिया, हिंदी एरिया जो है इंडिया का, यहाँ पर जो है शहनाई के बगैर कोई भी शादी नहीं होती। शहरों में भी आप देखिए एक फैशन है आजकल, समझ रहे ना, शहनाई, वो दरवाजे पे दो लोग जो है शहनाई बजाते हैं, अंदर भी जो है शहनाई के सुर को शुभ माना जाता है। क्या माना जाता है? शुभ। इसलिए जो भी शुभ प्रसंग होते हैं, सारे शुभ प्रसंगों पर शहनाई बजाई जाती है। द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल इंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स। तो पुराने ज़माने में शहनाई क्या हुआ करती थी? एक नौबत हुआ करती थी। नौबत बोलते हैं ना, नौबत आ गई, नौबत आ गई, नौबत आ गई। अब नौबत यानी क्या होता है? नौबत, ये ना नौ है ना, 9 इंस्ट्रूमेंट्स का एक ग्रुप, उसका एक पार्ट थी शहनाई। समझ रहे ना? क्या राजा महाराजों के दरबारों में नौबत बजती थी। नौबत यानी 9 इंस्ट्रूमेंट्स। तो क्या होता था कि लोगों ने ऐसे इसका दुष्प्रचार कर दिया। समझ रहे ना? क्या करते? दुष्प्रचार। नौबत, नौबत मतलब राजा के दरबार में कुछ बज रहा है, मतलब क्या हो रहा है? एक तो युद्ध का जो है आगाज हो रहा है, युद्ध की शुरुआत हो रही है ना, या कोई भाई लगान वसूलने के लिए लोग आ रहे हैं तो नौबत बज रही है, या कोई बड़ी चीज़ हो रही तो नौबत बज रही है। तो लोग जो है कुछ ऐसा बच गया तो बोलते थे क्या नौबत आ गई, तो इसका अपभ्रंश हो गया। लेकिन नौबत का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? नौबत और ट्रेडिशनल इंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स। कितने इंस्ट्रूमेंट्स? 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। रॉयल कोर्ट्स का मतलब होता है राज दरबार। रॉयल कोर्ट्स यानी राज दरबार। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। अभी अभी तक इसको सिर्फ शहनाई को टेम्पल्स में और वेडिंग्स में बजाया जाता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, लेकिन इसको क्लासिकल स्टेज में लाने का क्रेडिट अगर किसी को जाता है, एक नेचुरल स्टेज पर लाने का, एक प्रोफेशनल स्टेज पर लाने का क्रेडिट अगर किसी को जाता है, दैट गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और यहाँ से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की कहानी दोस्तों शुरू होती है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का वो बार्बर, वो म्यूजिकल फैमिली को बिलोंग करने वाले बार्बर, वो शाह, उनसे कोई संबंध नहीं है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इज ए प्लेयर, इज ए शहनाई मास्टर, इज ए प्लेयर ऑफ शहनाई। ओके, समझ में आया यहाँ तक? ओके, फाइन। As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Dumrao. ओके, क्या खेलते थे वो? ये देखिए गिल्ली डंडा, ठीक है ना? एक गिल्ली रहती है और एक डंडा रहता है। आपको तो अभी तो पता होगा, नहीं होगा मुझे पता नहीं, पर पुराने ज़माने में इसको बहुत खेला करते थे। गिल्ली डंडा गांव का ये बड़ा फेमस गेम हुआ करता था, क्रिकेट के आने से पहले। क्रिकेट के आने के बाद भी खेलते थे लोग। ओके। As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Dumrao in बिहार। एंशियंट स्टेट यानी पुराने ज़माने में क्या होते थे, राज्य जो है ना, इनका जन्म कब का है? इनका जन्म है बिफोर इंडिपेंडेंस। तो बिफोर इंडिपेंडेंस जो है भारत जो है राज्यों में बटा हुआ नहीं था, अलग अलग प्रोविंसेस में बटा हुआ था, अलग अलग स्टेट्स में बटा हुआ था, अलग अलग यूसी प्रांतों में बटा हुआ था। तो डुमराव प्रांत समझ रहे ना,
डुमराव प्रांत है एक बिहार में, वहाँ बिस्मिल्लाह खान रहते थे, उनका जन्म स्थल है। He would regularly go to the nearby बिहारी जी टेम्पल। देखिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कहाँ जाते थे? बिहारी जी टेम्पल में जाते थे रेगुलरली टू सिंग द भोजपुरी चैता। एक राग होता है चैता, चैता राग, समझते हैं? तो भोजपुरी चैता गाने के लिए वो रोज कहाँ जाते थे? डेली बिहारी जी टेम्पल में जाते थे। At the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local महाराजा। और ये चैता गाने के बाद उनको एक 1.25 kg का क्या मिलता था? एक लड्डू जो है एज ए प्राइज मिलता था। वहाँ के लोकल महाराजा, डुमराव स्टेट के जो महाराज थे ना, वो उनको देते थे। अब देखिए, दिस हैपन 80 ईयर्स एगो। ये कब की बात है? ये 2005 में लिखी गई है लगभग स्टोरी। समझ रहे हैं आप? मतलब ये जो अपना बुक है ना, 2004-5 के समय का बुक है। तो इट हैज़ हैपन 80 ईयर्स एगो। आज हम बोलेंगे ये लगभग जो है 90-95 ईयर्स के पहले हुआ था। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इन इंडिया, द भारत रत्न। तो एक डुमराव स्टेट में एक मंदिर के किनारे, समझ रहे हैं, गिल्ली डंडा खेलने वाला लड़का और शाम के समय चैता गाने वाला लड़का, एक 1.25 किलो के लड्डू प्राइज जो उनको मिलता था, उसके लिए एक चैता गाने वाला लड़का, इन्होंने अपने जीवन को इतना आगे बढ़ाया। एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है दोस्तों। वो वहाँ से उठकर जो है, वो उनकी इतनी तरक्की हुई, वो इतने आगे बढ़े कि एक बहुत बड़े शहनाई प्लेयर बने। वो इतने बड़े शहनाई प्लेयर बने कि भारत के वो भारत रत्न पुरस्कार से उनको नवाजा गया। तो ये जो जर्नी है, ये ट्रिमेंडस जर्नी है। तो इस जर्नी को अब हम पढ़ेंगे। Born on 21st March 1916, बिस्मिल्लाह belongs to a well-known family of musicians from Bihar। 21 मार्च 1916 को इनका जन्म हुआ और एक बड़ी ही म्यूजिशियन फैमिली को बिलोंग करते थे, बिहार के। ओके। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, उनके ग्रैंडफादर का नाम था रसूल बख्श खान, वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुरी किंग्स कोर्ट। उनके जो ग्रैंडफादर थे, उनके जो दादाजी थे, उनका नाम था रसूल बख्श खान। ये एक शहनाई नवाज थे, मतलब शहनाई प्लेयर थे। भोजपुर किंग के कोर्ट में, भोजपुरी राजा के दरबार में ये क्या करते थे? ये शहनाई बजाते थे। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स। देखिए, पैटर्नल का मतलब होता है, समझते ना, पैटर्नल, मैटरनल। पैटर्नल मतलब रिलेटेड टू फादर और मैटरनल मीन्स रिलेटेड टू मदर। आप देखिए, मैटरनिटी होम होते हैं जहाँ बच्चे की डिलीवरी वगैरह होती है। ओके, इट इज कॉल्ड एज मैटरनिटी। और मैटरनल मीन्स रिलेटेड टू मदर, मदर से रिलेटेड, मम्मी से रिलेटेड। और पैटर्नल यानी, पैटर्नल मीन्स पापा से रिलेटेड, फादर से रिलेटेड। मीन्स हमारी पैटर्नल आंटी मतलब हमारी चाची, और हमारी मैटरनल आंटी मतलब हमारी मौसी। समझ रहे ना? मौसी हो गई, मामी हो गई, और इधर चाची हो गई, फादर से रिलेटेड। यस, पैटर्नल एंसेस्टर्स। तो इनके सारे के सारे पैटर्नल एंसेस्टर्स वेयर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर। तो पैगंबर बख्श हो गए या रसूल बख्श खान हो गए, सब के सब जो है उनके पैटर्नल एंसेस्टर्स भी और मैटरनल जो रिलेटिव्स उनके सब थे, वो सब के सब जो है शहनाई प्लेयर्स थे। आगे देखते हैं। ये वर्ड के मीनिंग है बड़े इंपॉर्टेंट। देखिए, ऑस्पिशियस यानी होता है होली, शुभ, पवित्र। इंडिस्पेंसिबल, वेरी इंपॉर्टेंट। कंपोनेंट का मतलब ग्रुप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्र, ठीक है, ट्रेडिशनल ऑफ ओल्ड टाइम्स। तो ये सब लिख लेना आप। हाँ, ओके, आगे फिर से एक बार यहाँ पे वर्ड की मीनिंग है, और ये शुभ बताने के लिए, शुभ शकुन बताने के लिए ये पूरा है। आगे, द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। ये यंग लड़का बहुत जल्दी इन्होंने जो है म्यूजिक सीखना शुरू किया।
टुक टू म्यूजिक का मतलब यहाँ पे है टू बिगिन रिसाइटिंग म्यूजिक, टू बिगिन लर्निंग म्यूजिक, उसको बोलते हैं टुक टू म्यूजिक. ओके. At the age of 3 only, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the शहनाई. तो जब वो अपने अंकल, उसकी मम्मी जो है उनको बचपन, जब वो 3 साल के थे तो जाते हैं ना मैके वगैरह जाते हैं, तो उनके मामा जी थे. मैटरनल अंकल है ना मामा, ठीक है ना, अभी बताया ना मैंने पैटर्नल मैटरनल. तो उनके मामा जी जो थे वो भी एक शहनाई प्लेयर थे और वो प्रैक्टिस किया करते थे सुबह उठ के या शाम में जब भी. सुन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल अली बख्श. तो उनके अंकल का नाम क्या है? अली बख्श. टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस. ठीक है, मैं बार बार उस बात को दोहरा नहीं रहा हूं, लेकिन विष्णु टेम्पल, बालाजी टेम्पल, समझ रहे ना. और ये सब के सब जो है वहां के शहनाई नवाज थे. ओके. Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras, where Baksh was employed to play the शहनाई. तो विष्णु टेम्पल में अली बख्श जो थे वो एम्प्लॉयड थे, मतलब उनकी वहाँ नौकरी थी, वो वहाँ सर्व करते थे. उनको जो है वहाँ पर रखा था शहनाई बजाने के लिए. Ali Baksh would play the शहनाई and Bismillah would sit captivated for hours on end. Captivated and attracted. Captivated and अट्रैक्टेड. और बिस्मिल्ला खान जो है वहाँ अली बख्श जो है शहनाई बजाते रहते थे और बिस्मिल्ला खान जो है उनके अंकल को देखकर जो है बड़े आकर्षित होते थे घंटों तक. स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे. और तुरंत ही जो है अली बख्श को भी समझ में आ गया होगा उसके अंकल को कि बिस्मिल्ला खान जो है बहुत अच्छे इंटरेस्टेड है शहनाई प्लेइंग में. ठीक है. तो उन्होंने जो है उनको शहनाई बजाना सिखाना चालू कर दिया. एंड दिन दिन भर जो है वो प्रैक्टिस करते हुए बैठ जाते थे. फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉर्न्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड. सॉलिट्यूड यानी एकांत. सॉलिट्यूड यानी एकांत. सॉलिट्यूड का मतलब होता है एकांत. ओके. एकांत में जो है ये वहां पर बैठकर, कहां पर बैठकर? बालाजी टेम्पल, टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया टेम्पल के किनारे पर बैठ के जो है ना, एट दी एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा. ओके. टेम्पल्स ऑफ बालाजी, मंगला मैया, इन मंदिरों में, और गंगा नदी के किनारे. गंगा मैया बोलते हैं ना गंगा जी को, भारत की सबसे बड़ी नदी है ये. ठीक है. तो इन नदी के किनारे बैठ के, गंगा जी के किनारे बैठकर जो है वो सॉलिट्यूड में जो है वो क्या करते थे? क्या सीखते थे? शहनाई सीखते थे. है ना. ये जो नया वर्ड है आपको लगेगा यंग अप्रेंटिस. यंग अप्रेंटिस है ना, जो नव सिखा होता है, मतलब नया नया सीखने वाला, उसको अप्रेंटिस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? अप्रेंटिस. आगे की लाइन बड़ी ऑसम लाइन है दोस्तों. देखिए क्या बोलते हैं. द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम. किस लिए इंस्पायर करते थे? गंगा का बहता हुआ पानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को इंस्पायर करता था. किस लिए? टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास दैट वेर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई. नए नए राग, नए नए गाने, नई नई धुन को इम्प्रोवाइज करने के लिए और इन्वेंट करने के लिए गंगा जी का बहता हुआ पानी जो है उन्हें इंस्पायर करता था. और इस तरीके से वो उन्होंने ऐसी ऐसी धुन, ऐसे ऐसी राग उनको इम्प्रोवाइज किया, नए नए राग बनाए. शहनाई के जरिए जो है उन्होंने नए नए रागों को का आविष्कार किया, पुराने रागों को इम्प्रोवाइज किया, शहनाई के धुनों में ढाला. which that were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई. तो आगे क्या बोलते हैं? यस. देखिए एक और चित्र है और कुछ वर्ड है ना. ट्रेनी.
वर्ड के मीनिंग ज़रूर आप सबके सब लिख लीजिए, बहुत सारे वर्ड के मीनिंग इसमें और बड़े बेहतरीन। ओके। Now, at the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad music conference. At the end of his recital, Ustad Fayyaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान ने जो है अलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में अपने अंकल जो है अंकल का साथ दिया शहनाई वादन में, और वहाँ पर उस्ताद फैयाज खान, उस ज़माने के कोई उस्ताद होंगे, वो आए थे। पैटेड द यंग बॉयज़ बैक, उन्होंने जो है उनकी पीठ थपथपाई और कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। सो आगे बढ़ के क्या हुआ, विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो, तो जैसी ऑल इंडिया रेडियो का ओपनिंग हुआ इन लखनऊ में, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। इन 1938 केम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक, बिस्मिल्लाह खान को पहला बिग ब्रेक मिला जब ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई। कहाँ पर? लखनऊ में 1938 में। ही सुन बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन दी रेडियो। तो बिस्मिल्लाह खान को उस दिन के बाद से, ही वॉज एम्प्लॉयड देयर, उनको वहाँ पे नौकरी मिल गई मान लीजिए, और हमेशा जो है बिस्मिल्लाह खान को शहनाई बजाते हुए आप ऑल इंडिया रेडियो पर सुन सकते थे। When India gained independence on 15th August in 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। तो जैसा हमने पहले स्लाइड में भी पढ़ा कि 15 अगस्त को 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, तो जवाहरलाल नेहरू जी के, भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी के भाषण के पहले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने पूरे हिंदुस्तान के लिए जो है, क्योंकि ये शुभ एक समय था, सबके लिए शहनाई वादन किया था। ही पोर्ड हिज हार्ट आउट इनटू राग काफी। तो कौन सा राग उन्होंने गाया था अपने शहनाई के माध्यम से? राग काफी गाया था। क्या गाया था? राग काफी। फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस इन विच इंक्लूडेड महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू, who later gave his famous ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच। उसके बाद उन्होंने जो है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच पढ़ा था। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बाद में रेडियो पर भी जो है ये स्पीच जो है, वो शहनाई जो है ये प्रसारित हुई थी। ओके। बिस्मिल्लाह खान हैज गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। भारत में और अब्रॉड में कई सारे परफॉर्मेंसेस उनके हुए। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान। उनकी पहली ट्रिप कहाँ थी? अफगानिस्तान में थी। वेयर किंग जहीर शाह। देखिए अलग अलग हर पार्ट में आपको उनके जीवन से जुड़ी हुई नई नई बात मिलेगी। हाँ, जैसा इस स्लाइड में हमने देखा इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस के बारे में, इसमें जो है हमने देखा 15 अगस्त 1947 में क्या हुआ। अब देखिए स्लाइड नंबर 8 में जो है, पार्ट नंबर 8 में जो है कुछ और है। क्या? बिस्मिल्लाह खान हैज गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान वेयर किंग जहीर शाह was so taken in। taken in का मतलब होता है attracted। taken in means attracted by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs। souvenirs का मतलब होता है गिफ्ट्स, अपनी किसी की मेमोरी में जो है गिफ्ट देना, सोवेनियर्स। तो किंग जहीर शाह ने जो है उनको बहुत सारे गिफ्ट्स दिए और पर्शियन कारपेट्स भी उनको गिफ्ट किए। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड बाय बिस्मिल्लाह म्यूजिक। तो बिस्मिल्लाह खान की सादगी, बिस्मिल्लाह खान की जो म्यूजिक है, उनका जो शहनाई प्लेइंग है, इससे जो है सिर्फ अफगानिस्तान के किंग जहीर शाह ही इम्प्रेस नहीं हुए थे। तो कौन थे और वो लोग? देखिए, फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट, फिल्म डायरेक्टर थे विजय भट्ट। ही वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट ए फेस्टिवल दैट ही नेम्ड ए फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। तो एक डायरेक्टर थे, फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट नाम के, समझ रहे हैं आप? तो उन्होंने एक बार बिस्मिल्लाह खान को, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को शहनाई, किसी प्रोग्राम में शहनाई बजाते हुए सुना।
और वो इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने अपनी एक फिल्म का नाम रखा गूंज उठी शहनाई। ओके। और उस फिल्म में बिस्मिल्लाह खान ने ही म्यूजिक दिया था। और उस फिल्म का गाना आगे देखिए, आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल गूंज उठी शहनाई एंड द फिल्म वॉज ए हिट, वो फिल्म बहुत हिट हुई। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस, दिल का खिलौना है टूट गया, टर्न्ड आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर। नेशन वाइड चार्ट बस्टर का मतलब होता है यहाँ पे रिकॉर्ड ब्रेकर साबित हुआ। ये गाना जो है, इस गाने ने सारे के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। ठीक है। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड, सेल्यूलॉइड का मतलब होता है फिल्म वर्ल्ड, सेल्यूलॉइड वर्ल्ड यानी फिल्म वर्ल्ड में उनको पहले ही फिल्म में इतनी सफलता मिलने के बाद, पश्चात मिलने के बावजूद, बिस्मिल्लाह खान वेंचर्स इन फिल्म्स म्यूजिक वेयर लिमिटेड टू बिस्मिल्लाह खान को जो है वहाँ का माहौल बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने अपने जीवन में सिर्फ 2 फिल्में की। कौन सी थी 2 फिल्में? विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवासास कन्नड़ा वेंचर सनाधि अपन्ना। ये 2 ही फिल्मों में उन्होंने म्यूजिक दिया। उनको जब पूछा गया कि आप इतने अच्छे शहनाई नवाज है, इतनी म्यूजिक की आपको समझ है, आप क्यों फिल्मों में जो है नाम कमाना नहीं चाहते? तो वो कहते हैं, आई जस्ट कैनॉट कम इट टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। वो बोलते हैं कि फिल्म वर्ल्ड में जो है कृत्रिमता है, एक आर्टिफिशियलिटी है, एक नकलीपन है, और ग्लैमर से मुझे कभी कोई जो है मुझे जो है कभी भी ग्लैमर के प्रति कोई अट्रैक्शन नहीं रहा। ग्लैमर समझते हैं ना? ग्लैमर का मतलब होता है चमक धमक। ही सेज विथ एम्फेसिस। तो हमें पता चलता है कि कितने सादगी भरे थे। तो मित्रों, अभी मौका भी है तो आपको मैं ये गीत जरूर सुना देता हूँ, गूंज उठी शहनाई फिल्म का दिल का खिलौना है टूट गया। हम 2 मिनट का बाइट जो है सुनेंगे अभी। ओके, चलो यूट्यूब खोलते हैं, यूट्यूब में सर्च करते हैं। हाँ, दिल का खिलौना है टूट गया। देखिए पहले इस पे आ गया। हाँ, ये नहीं नहीं, ये नहीं, 1 मिनट। कितना मेलोडियस है गाना, आप सुनिए।
बहुत सुंदर गाना हम सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सुनते जाओ, लेकिन समय की कमी है दोस्तों हमारे पास, तो हम ओके। तो आपने सुना था ये वो गाना था जिसका जिक्र जो है इस बुक में हुआ। तो ये गाना, यस, ये ये देखिए, ये फिल्म का पोस्टर भी मैंने यहाँ पे लगाया है, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो सेलुलाइट वर्ल्ड में उनको जो है इंटरेस्ट नहीं रहा, और शायद इसमें दिलीप कुमार भी थे, और ये साहिबान हीरोइन भी थी इनमें। और इस फिल्म का म्यूज़िक जो है किसने दिया था? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। आपने गाना सुना, कितना बेहतरीन म्यूज़िक वो देते थे। अगर वो फिल्म इंडस्ट्री में रहते तो सारे, लगभग सारे रिकॉर्ड ब्रेक्स वो कर देते, लेकिन सेलुलॉइड वर्ल्ड से उनको कोई लगाव नहीं रहा। फिर आगे पूरा एक्सप्लेनेशन है, हाँ, पूरा पढ़ लेना आप। यस, ये एक और बेहतरीन चित्र है बिस्मिल्लाह खान साहब का। ओके, now awards and recognition came thick and fast, and Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Arts Festival and in the Osaka Trade Fair. तो ये सभी जगह उन्होंने गए, खूब सारे अवार्ड्स उनको मिले। थिक एंड फास्ट का मतलब होता है तेजी से। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड, उनको इनवाइट किया गया था लिंकन सेंट्रल हॉल में। कहाँ पर? लिंकन सेंट्रल हॉल में उनको शहनाई के वादन के लिए उनको बुलाया गया था, इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, देन ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, और मॉन्ट्रियल नाम की एक शहर है, मॉन्ट्रियल में उन्होंने वर्ल्ड एक्सपोजिशन में भी परफॉर्मेंस दिया, एंड इन द कांस आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran, देखिए वो इतने फेमस हो गए थे इंटरनेशनली कि तेहरान जो है, तेहरान के एक ऑडिटोरियम का नाम, इस देश के ऑडिटोरियम का नाम जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पर रखा गया। क्या नाम था वो? क्या था, क्या रखा गया नाम? वो ताहिर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह Khan. This is the name given to an auditorium in Tehran. Okay, fine. नेशनल अवार्ड्स भी उनको मिले। नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्मश्री उनको मिला, पद्म भूषण उनको मिला, और पद्म विभूषण भी उनको मिला, वेयर कन्फर्ड ऑन हिम। एंड इन 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द भारत रत्न। कौन सा अवार्ड उनको मिला? भारत रत्न जो है उनको मिला। ये देखिए, ये चित्र मैंने आपके लिए खोज कर लाया है। ये है हमारे उस समय के राष्ट्रपति, नहीं, ये जो है ये उनको जो है पद्मश्री वगैरह दिया जा रहा है शायद। ठीक है, ओके। 2001 में उनको जो है ये दिया गया। Now in 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna, with the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with the rare happiness, he said. जब उनसे पूछा गया कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है ना, और उनके जो है अवार्ड जो है उनके चेस्ट पर यहाँ पर लगा है, उनसे पूछा गया कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, तो उनके चेहरे पर एक रेयर मुस्कान, एक रेयर हैप्पीनेस आ जाता है, और वो कहते हैं ऑल आई वुड लाइक टू से, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। क्या? टीच योर चिल्ड्रेन म्यूजिक। बड़े ही सादगी भरे अंदाज में वो जवाब देते हैं। कोई अहंकार नहीं, कोई गर्व नहीं, किसी बात की जो है जल्दबाजी नहीं, कोई बहुत जो है खुशी भी नहीं, बहुत गम नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम अलग अंदाज में वो बोलते हैं टीच योर चिल्ड्रेन म्यूजिक, अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाइए। दिस इज हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये हिंदुस्तान की सबसे जो है रिचेस्ट परंपरा है, सबसे अच्छी परंपरा है। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न अवर म्यूजिक,
वो बोलते हैं कि वेस्ट के लोग, पश्चिम के लोग भी, मतलब यूरोप के लोग भी जो है यहाँ पर अपना म्यूज़िक सीखने के लिए आ रहे हैं, और हमें जो है हमारे क्लासिकल म्यूज़िक को पीछे नहीं करना चाहिए। आगे देखिए, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान घूमे। खान साहब एज इज फॉन्डली कॉल्ड, और उनको बड़े प्यार से किस नाम से पुकारा जाता था? खान साहब के नाम से पुकारा जाता था। ही इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ, एक्सीडिंगली फॉन्ड का मतलब होता है बहुत ज्यादा, एक्सीडिंगली, एक्सीड होता है ना कुछ, एक्सीड है नहीं, बहुत ज्यादा। ही इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव, एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो दो शहर है, बनारस और डुमराव, डुमराव जहाँ पे उनका जन्म हुआ, और बनारस जहाँ पर वो पले बड़े, समझ रहे ना, अपने अंकल के साथ वो रहे, हमने पढ़ा। बनारस एंड डुमराव, एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये दो शहर उनके लिए, लंदन नहीं, पेरिस नहीं, पूरी दुनिया भर में वो घूमे, लेकिन दो शहर उनके लिए क्या है, दुनिया के सबसे अच्छे टाउन्स में से एक मानते थे। अ स्टूडेंट ऑफ हिम वंस वांटेड हिम, ये भी इंसिडेंट बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों, सुनना। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड ए शहनाई स्कूल इन द यूएसए। एक उनका स्टूडेंट था, शहनाई सीखने के लिए आया था यूएसए का, और उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ यूएसए चलिए, और वहाँ पर जो है आप वहाँ एक शहनाई स्कूल खोलिए, ठीक है, वहाँ के बच्चों को पढ़ाइए। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को पता है, उनको पता था, उसको पता था कि इनको मंदिरों से बड़ा लगाव है, बनारस से बड़ा लगाव है। तो उस बच्चे ने कहा, उस अमेरिकन स्टूडेंट ने कहा, यूएसए के स्टूडेंट ने कहा कि आपको मंदिरों से इतना लगाव है, मैं जानता हूं, तो मैं वहां पे जो है मंदिरों, पूरे मंदिरों का रिप्लिकेशन कर दूंगा। रिप्लिकेट करना, करने का मतलब होता है किसी चीज को दोबारा बनाना, किसी चीज को दोबारा बना, बिल्कुल मैं ऐसा एटमॉस्फेयर वहां पर क्रिएट कर दूंगा, आप बस मेरे साथ चलिए, वहां पर मंदिरों में बैठकर आप बच्चों को शहनाई सिखाइए। बट खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन खान साहब ने उससे पूछा, बड़ा अद्भुत है ये दोस्तों, क्या पूछा? खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। ये बेहतरीन स्टेटमेंट इस पूरे लेसन की जान है, ये पूरे लेसन का सोल इस स्टेटमेंट में आता है दोस्तों। और बिस्मिल्लाह खान के जीवन को भी वो दर्शाता है, को कितना उनको लगाव गंगा मैया के साथ था, कितना उनको लगाव जो है बनारस के साथ था, वहाँ के मंदिरों के साथ था। तो उन्होंने कहा, उससे कहा कि तुम वहाँ पे मंदिरों को तो वहाँ रिप्लिकेट तुम कर दोगे, चलो ठीक है, लेकिन क्या तुम गंगा नदी को भी, गंगा मैया को भी ट्रांसपोर्ट करके वहां पर ले जा सकते हो? अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो चलो, हो सकता है शायद मैं तुम्हारे साथ आऊं, क्योंकि इसी में हमने अभी पढ़ा कि द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम। ये गंगा का बहता हुआ पानी जो है उनको क्या करता था, इंस्पायर करता था। तो ऑब्वियस सी बात है वो अमेरिका नहीं गए। लेटर ही इज रिमेंबर्ड टू हैव सेड, उसके बाद उनको कहते हुए सुना गया, वो कहते थे, क्या कहते थे? दैट इज वाई whenever I am in a foreign country, I keep yearning to see हिंदुस्तान। यार्निंग है ना इच्छा, यार्न का मतलब होता है तीव्र इच्छा। वो बोलते हैं कि जब भी कभी मैं फॉरेन में रहता हूँ, किसी भी कंट्री में, तो मैं भारत को याद करता हूँ। वाइल इन मुंबई, और मैं अगर कभी मुंबई में रहता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मठ ऑफ डुमराव। मठ होता है मंदिर के किनारे जो है, वो जो साधु संत आते हैं उनके लिए रैन बसेरा किया जाता है, उनके रहने की व्यवस्था के लिए, उसको बोलते हैं मठ, ठीक है ना, मठ। तो वो बोलते हैं कि जब भी मैं फॉरेन में रहता हूँ तो मुझे भारत की याद आती है, और जब मैं भारत में रहता हूँ, मुंबई में रहता हूँ, तो मुझे बनारस की याद आती है, होली गंगा मैया की याद आती है, होली यानी पवित्र। और जब भी मैं बनारस में रहता हूँ तो मुझे
डुमराव का मठ याद आता है, जहाँ पर बैठकर मैं जो है, जहाँ के आसपास मैं जो है बचपन में खेला करता था। सो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब का जो लाइफ है वो एक रिच कल्चरल हेरिटेज है। हेरिटेज यानी धरोहर। हेरिटेज का मतलब होता है एक धरोहर है उनका, सांस्कृतिक, एक उच्च दर्जे की सांस्कृतिक धरोहर है उनका पूरा लाइफ। वन दैट इफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको ये एक्सेप्ट करने में कोई परेशानी नहीं होगी, दैट ए डिवोट मुस्लिम। देखिए हमने इस बात का जिक्र जो है पूरे लेसन में नहीं किया, लेकिन अभी लेसन ही में इसका जिक्र आ गया कि एक डिवोटेड मुस्लिम, जो पांचों टाइम की नमाज पढ़ने वाला डिवोटेड मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। आप एक डिवोटेड मुस्लिम को, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को सुबह सुबह काशी विश्वनाथ टेम्पल में शहनाई बजाते हुए भी देख सकते हैं। दिस इज द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया विच इज इंटरमिंगल्ड इन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और भारत के जो सर्वधर्म संभाव का भी वह एक जीता जागता प्रतीक थे। कौन, किसकी बात हो रही है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की। एक डिवोटेड मुस्लिम होने के बावजूद, मोहम्मद पैगंबर को मानने वाले, कुरान को मानने वाले जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे, वो उनको जो है आप आसानी से जो है काशी विश्वनाथ टेम्पल में, बनारस में जो है शहनाई बजाते हुए आप देख सकते थे। तो एक एक हार्मनी का एक दर्शन उनके जीवन से हमको मिलता है। ठीक है, ये और एक चित्र उनका बड़ा रेयर पिक है, मैंने खोज कर निकाला है आपके लिए, और बड़ा ही सुंदर लेसन। ये बनारस का चित्र है दोस्तों। हाँ, बनारस आपको पता है, बनारस भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बनारस से सांसद है ना। और बनारस मंदिरों का शहर भी माना जाता है। फॉर मेनी ईयर्स उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रिमेन्ड इन बनारस। ही वुड विजिट द टेम्पल ऑफ बालाजी, टेम्पल ऑफ मंगला मैया, एंड वुड रिमेन on the bank of river Ganga where he would practice playing the shehnai all by himself। तो आगे देखिए, ये कुछ और चित्र है, बड़ा सुंदर स्लाइड, मुझे खुद पसंद आया ये के लिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह का। सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन। ओके, तो उनकी लाइफ जो है हमारे लिए एक रिच कल्चरल लाइफ है। और लास्ट में देखिए क्या हुआ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हैड बीन इल फॉर ए लॉन्ग टाइम, वो बहुत समय तक बीमार रहे। एंड ही डाइड ऑन 21 अगस्त 2006, 2006, 21 अगस्त 2006 को उनकी डेथ हो गई एट द एज ऑफ 90, लगभग वो 90 साल के थे। द एंटायर कंट्री mourned the death of this legendary musician and there was a holiday for one day and he was given a state funeral। उनको जो है पूरे सम्मान के साथ जो है अंतिम विदाई दी गई। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एंड आई होप दैट all of you understand this lesson very nicely। So from tomorrow onwards we will see the exercise of this lesson। Thank you very much।